Very good evening, students. How are you all? All right. So let's continue our lesson fire, friend, and foe. All right. So last class, what we had seen, I've just written over here and kept. So we'll have a quick recap and proceed further. All right. So we learned that fire is useful and it's dangerous too. For early man, it sounded very dangerous because he didn't know what to do with it, right? But now we know that it's a chemical reaction. It's called as combustion also, right? So oxygen with carbon and hydrogen, when it reacts, oxygen, where do we get it? In air, okay? Carbon and hydrogen means what? It's anything which is fuel like wood, cooking gas, petrol, all these is fuel, right? So that combines and you get what? Oxidized fuel elements that with heat and light. That is nothing but fire, right? Now, we also saw that fuel, it has a particular temperature at which it begins to burn, because you would have seen like wood is there, it will burn, it will take time to burn. If I light a paper, it will burn immediately. If this is a paper, if I burn the paper, it will burn immediately. So the burning point which is there, that's called as a flash point or kindling temperature, is what we learned in the lesson. And we also saw that fire is a good servant or a bad master. Good servant when it's in control, in our control, it will be useful. It's a bad master when it's out of control. And what can happen? What can happen out of control? It's very, very dangerous. And then we also saw how we can put out fire. How we can put out fire? Fire will die. That means when will fire die? By not adding more fuel. Like I showed you an example last class. If there is wood is here. If I am burning this fire, it is obviously going to spread and go and burn here also. But if I remove the fuel at all, if I remove this fuel from here, it will automatically go here and it'll stop here. It cannot spread because the fuel itself is removed. And the other part, what I showed you was a candle was burning and I covered it with the glass and showed you, so that the oxygen supply is cut, the fire also will be put out. So that's what we learned by not adding more fuel and prevent oxygen reaching it. So if you prevent oxygen from reaching it also, you can put out the fire. So we did learn that fire, this is the fire triangle. All three are needed for the fire to occur. The fire will occur. Occur means this fire will occur only when all the three are there. Even one is fuel is removed, there will be no fire. Okay, if oxygen is removed, no fire. Heat means what? How the heat, that is what we are going to read in the next paragraph, how we are going to remove the heat. Till now what we learned by not adding more fuel and prevent oxygen from reaching it there where we left the lesson. Now we are going to continue, so please take out your textbook and read along with me. Be with me. All right, so shall we start now? Do you have any doubts so far? Please let me know so that I can read it to you again. I hope there is no doubt, right? So let's proceed further, right? Okay, let's proceed, move further. Okay, I'll rub the board now and we will go further. Any doubts so far? Please let me know. No doubts, right? You can type in the chat box. I'm there. I'm looking at the chat box. Okay, so that you can, I will know whether if you have doubts, I'll stop and address the doubts. All right, so let's proceed further. We left which line exactly? I will read that line. Okay, which was that? Fire can be put out. We read there are main three ways. No supply of oxygen means no fire, is what we left. Okay. I'll read that line one more time so that you can be. The second way of putting out fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. वहां तक ही हमने छोड़ा था आपका लेसन. तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा. So we should proceed further. We will read more on it. Okay, so I'm going to the next paragraph. Small fires can be put out by or smothered. तो क्या बोल रहे हैं? जो छोटी छोटी फायर जो है,
यानी कि बड़ी आग नहीं, छोटी छोटी जो फायर है, कैन बी पुट आउट। कैन पुट आउट यानी कि क्या, उसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पुट आउट, या तो दूसरा वर्ड क्या है उसका, पुट आउट का दूसरा वर्ड स्मॉदर्ड। smothered with a damp blanket or a sack। तो इसको कैसे पुट आउट कर सकते हैं, डैम्प ब्लैंकेट यानी कि गीली ब्लैंकेट जो है उसको पानी में थोड़ा सा गीला करके उसको आग के ऊपर लपेट सकते हैं। या तो ब्लैंकेट या तो सैक। सैक यानी कि क्या, जो हम लोग राइस का बैग सब आपने देखा होगा, राइस चावल सब लेते हैं तो एक बैग जैसा ब्राउन कलर का एक सैक होता है। तो वैसे सैक या तो फिर ब्लैंकेट को गीला करके उस फायर के ऊपर हम डालेंगे तो वो बंद हो जाएगी बोल रहे हैं। दिस स्टॉप्स, क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि दिस स्टॉप्स दी ऑक्सीजन। क्यों बंद हो जाती है, स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ये बर्निंग मटेरियल, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आग लगी है, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंबल वंबल ले लिया, और यहाँ पर मेरे सामने एक टवल जैसा है, मैं उसको दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने गीला कर दिया और मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। तो अगर मैंने ऐसे बंद कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया था, इसीलिए ये तुरंत पुट आउट हो जाएगा, ये फायर करके बता रहे हैं। सो व्हाट दे से, दिस स्टॉप्स द ऑक्सीजन रीचिंग द कहाँ, बर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर बर्निंग मटेरियल मैंने क्या बताया था आपको, ये स्टिक जो है वो ही आपका बर्निंग मटेरियल है। तो वहां पहुंचने के लिए ये जो ब्लैंकेट है, ये जो गीली ब्लैंकेट है वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ऑल राइट, ठीक है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी, समटाइम्स क्या करना पड़ता है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश, माने क्या, टू पुट आउट दिस फायर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना पड़ता है एक्सटिंग्विश फायर को पुट आउट करने के लिए। इट डज नॉट अलाउ, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डज नॉट अलाउ, ये भी कैसे ही करता है, ये ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है। डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। सेम थिंग यहाँ पे जो पड़ा था वही, ये कंबल जो काम करता है वही काम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। ऑल राइट, सो इट्स गिविंग फर्स्ट रीजन इज how you will put out small or fire is, you will take a damp blanket or a sack and wrap it around the fire or the burning material, and the fire will be put out. But what happens in this process, the oxygen supply is cut off is what they are saying। तो इसके बदले कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सेम ब्लैंकेट का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को, बर्निंग मटेरियल को रीच करने के लिए रोकता है। डस नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। एक ब्लैंकेट जैसा, वो क्यों कैसे करके बता रहे हैं, देखिए। तो द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट। तो एक तो हुआ ये ब्लैंकेट डालना, दूसरा हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड डालना, तीसरा क्या है, थर्ड वे क्या है, तो पुटिंग, रिमूव द हीट, यानी कि यहाँ पे हीट को रिमूव करना है। ये जो हीट है उसको ही रिमूव करना है। ओके, अभी हमने क्या देखा, अभी ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए हमने दो तरीके देखे, एक डैम्प ब्लैंकेट, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये डालना है। अभी क्या देख रहे हैं कि ये जो हीट को रिमूव करने के लिए, फ्यूल भी हमने देख लिया कि फ्यूल ही हटा दो तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसे, तो वो भी है। नाउ नेक्स्ट इज हीट। So how do we remove that? If the temperature can be brought down below the flash point, यानी कि मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, ये जो जलने का जो समय होता है उसी को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं ना। तो उस फ्लैश पॉइंट को अगर टेम्परेचर कोई कम कर दिया तो फिर हम हीट को रोक सकते हैं ना, रिमूव कर सकते हैं ना। सो रिमूव द हीट, हाउ you'll remove them, temperature if the temperature can be brought down, उसको लोअर कर दिया, मैं एरो नीचे कर गया, देखिए टेम्परेचर को नीचे लाना है हमको, टेम्परेचर को हमको नीचे लाना है, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन। ओके, किसके बिलो ब्रिंग करना है, फ्लैश पॉइंट के बिलो ब्रिंग करना है, तो फ्यूल विल स्टॉप बर्निंग। तो इससे क्या होगा, ये फ्लैश पॉइंट से ये करने से क्या होगा, तो इट विल स्टॉप बर्निंग, तो जो फ्यूल है वो स्टॉप बर्निंग हो जाएगा।
ओके, यानी बंद हो जाएगा उसका बर्न करना, आग बंद हो जाएगी करके बाल बता रहे हैं। तो वी सॉ फर्स्ट वन इज डैम्प ब्लैंकेट और सैक लेना। डैम्प यानी कि क्या बेटा, गीला, गीला करने को ही डैम्प, यानी कि पूरा पानी टपकते टपकते नहीं होना चाहिए ऐसा। जैसे मॉइस्ट होता है ना, पूरा निचोड़ के पानी पानी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ गीला रहना चाहिए। ओके, सो गीला और पूरा पानी रहने में फर्क है, इसीलिए ये द वर्ड यूज्ड इज डैम्प। सो डैम्प ब्लैंकेट और सैक, you have to wrap it smoother, yeah, wrap it around so that the oxygen supply is cut and the fire will be put out. Another ways, you have to कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना पड़ता है टू एक्सटिंग्विश फायर, राइट। एंड द थर्ड वे इज टू रिमूव हीट। हीट कैसे रिमूव करोगे, कि वो टेम्परेचर को ही कम करना है, किसके बिलो कम करना है, फ्लैश पॉइंट के बिलो, तो देन इट विल स्टॉप बर्निंग। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यू ब्लो, तो इसको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप पूछते हो कि मैम कैसे मैम टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो जब बर्निंग कैंडल हो या बर्निंग मैच स्टिक हो तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे यहाँ पर मेरे, हाँ यहाँ पे ये तीली है, मैं हम क्या करते हैं, फू 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 करके ब्लो करते हैं ना। तो जब हम ब्लो करते हैं तो क्या होता है, ये उसका जो यहाँ पर जो टेम्परेचर था कम हो जाता है, इसीलिए तो वो आग बंद हो जाती है। तो वो ही बता रहे हैं यहाँ पर, बर्निंग मैच बॉक्स और अ कैंडल, या तो कैंडल ले लो, उस कैंडल को टू पुट आउट, इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम्स। तो अभी मान लीजिए ये जो है हमारा मैच बॉक्स, मैच स्टिक है, ये जल रही है। ओके, यहाँ पर ये जल रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फू 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 ऐसा करती है, तो यह क्या हो जाता है, इसके जो यहाँ जो इसका जो लेयर है यहाँ पर, मैं उसका टेम्परेचर को कम कर रही हूँ, यानी कि उसके फ्लैश पॉइंट को कम कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये फायर जो है ऐसे ये ऑफ होके बंद हो जाएगा, फिर मैच बॉक्स तीली को ऐसे बंद होके इससे बंद हो जाएगा। ऑल राइट, सो वही बोलने का मतलब है। सो यू ऑल वुड हैव सीन दैट, घर में भी आपने देखा होगा मम्मा जो है मैच बॉक्स जलाती है, अगरबत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, गैस जलाने के लिए, आपने ये सब आपने देखा होगा। सो दैट्स व्हाट दे मीन टू से। या बर्थडे कैंडल है, हम डालते हैं, फू ब्लो करके हम वो कैंडल्स को बुझा देते हैं। All that is why it gets put off. Why does the fire gets put off? Because of the, we are bringing the temperature down the flash point. That's why the candle or the matchstick stops burning. All right. So that's the logic behind it. That's what they are saying now over here. I'll read that line again. You blow on the burning matchstick or a candle to put out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down the temperature below the flash point, and the candle goes out. गोस आउट यानी कि क्या, कैंडल बाहर जा ही नहीं जा रहा है, कैंडल गोस आउट माने कैंडल बंद हो जाता है बर्न करने के लिए, इसका बोलने का मतलब है। ऑल राइट, समटाइम्स वाटर स्प्रेड ऑन फायर, कभी कभी पानी भी स्प्रे करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम यू ब्लोइंग करने के, कभी कभी वाटर भी स्प्रे करते हैं करके बताते हैं to on the fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. तो पानी क्या करता है, पानी जो है क्या करता है, lowers the temperature, टेम्परेचर को जो है लोअर कर देता है, तभी क्या हुआ, आग बुझ जाती है, ऐसे करके बता रहे हैं। सो इट लोअर्स द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो वाटर जो है, ब्लैंकेट ऑफ वाटर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक पानी का जो ऊपर का वो जो घेरा है, वो क्या करता है, नॉट ओनली इट कट लोअर्स द टेम्परेचर, बट इट ऑल्सो cuts off the oxygen supply, cuts off the oxygen supply. Okay, oxygen cuts off the oxygen supply and the fire is extinguished. तो फायर जो है बुझ जाती है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो what it does, water does not only lowers the temperature but also cuts off the oxygen. In the process, the fire is extinguished. Is it clear? So we are going to the next paragraph. I hope this paragraph is clear. So
I'll repeat again. First, damp or a blanket or sack you have to put over the burning material. What happens? Oxygen is cut off. Sometimes carbon dioxide is also used to extinguish the fire. Third thing is remove the heat from the, that is what the temperature you have to come, bring it below the flash point, like that, like how for the candle and matchstick we are given an example. And other ways is spraying water. Why spraying water? What happens? It lowers the temperature and cuts off the oxygen. So I have repeated thrice or twice, thrice. All right. So let's go to the next paragraph. So it's a very, very informative lesson where how you can keep the fire as a servant and not as a master. Why do you say that? Because it is in control. When it's a servant, it's in control is what they are saying, the phrase like that. All right. So next we read the next line. Okay. People, where did we go? Yes, carbon dioxide extinguisher is the best thing. Yes. Where did I leave? Yes. Small fires can be put out. We let that. Okay. Below the fashion to flow. Okay. Now, next point. You blow on burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flames, bringing down its temperature below the flash point. The candle goes out. Is that what we left now? Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs the heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts out the supply of oxygen and the fire is extinguished. Okay, I read the paragraph again. Next, some fires cannot be put out with water. अभी वाटर का तो हमने पढ़ा कि वो कट आउट ऑक्सीजन कर देता है और टेम्परेचर लोअर करता है, पर अगर कोई कोई आग जो है, सम फायर्स कि कोई कोई आग जो है पानी से यू कैन नॉट पुट आउट, यू कैन पुट आउट विथ वाटर, cannot, okay, cannot put out with water. क्यों भाई, क्यों नहीं पानी के साथ, क्यों? यू बोलिए क्यों, आप बोलो। हाँ, अभी पढ़ेंगे, देखिए, क्योंकि ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, बराबर। ऑयल तो वही पढ़ने वाले हैं, देखिए। इफ वाटर स्प्रेड ऑन टू द ऑयल फायर, तो ऑयल के वजह से फायर जो लगती है, ऑयल फायर, द ऑयल ऑब्वियसली है ना, पानी के से वाटर, जी, पानी से जो ऑयल है वो लाइट होता है ना बेटा, तो ऑयल विल फ्लोट, सो ऑयल विल फ्लोट, ओके। तो टू ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द वाटर, तो पानी जो है, जो ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और बर्न करता ही रहता है, कंटिन्यू टू बर्न। This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it. तो यहाँ पर पानी है, पानी को मैं ऐसे ब्लू से कर देती हूँ। यहाँ पर पानी है, ओके। तो उसके ऊपर मैं, मान लीजिए ये ऑयल को मैं काले से दिखाती हूँ आपको, इसके ऊपर ऑयल है और यहाँ पर आग लगी हुई है, ओके। ऐसे आग लगी हुई है, तो अगर हम पानी और डालेंगे तो ये जो आग है और भी ज्यादा ऐसे स्प्रेड होता ही जाएगा ना बेटा, बिकॉज वाटर ऑयल इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन इट एंड द फायर विल ऑब्वियसली स्प्रेड मोर एंड मोर एंड मोर लाइक दिस। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ऑयल विल फ्लोट ऑन टॉप एंड इट विल कंटिन्यू बर्निंग, ओके। So that's what we are going to learn. See carefully, listen. Okay, so carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should not be used on fires caused by, तो ये तो ऑयल के जो है फायर है उसके ऊपर भी वाटर नहीं स्प्रे करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो फायर है उसके ऊपर भी, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि क्या है, हमको शॉक लग सकता है ना। ये जो है बहुत ज्यादा वाइल्ड स्प्रेड हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। जब ऑयल का फायर हो तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए। दूसरी जो बात है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उससे, उसको भी ये वाटर से नहीं बुझानी चाहिए। क्यों? द पर्सन क्या स्प्रेइंग वाटर, जो पर्सन जो है पानी को जो स्प्रे कर रहा है,
वाटर स्प्रे कर रहा है, उसको क्या कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। तो उसको भी यू शुड नॉट पुट एंड बी किल्ड, और मर भी सकता है एंड बी किल्ड, और बहुत खतरनाक हो सकता है, एंड दैट पर्सन कैन डाई। Okay, so never ever put out a fire which is caused by oil and which is caused by electrical appliances. All right, so we are going to the next paragraph. All right, now next one is the carbon dioxide extinguisher is the best thing to put to fight an electric fire. तो ठीक है, पानी तो नहीं डालना चाहिए, तो क्या डालना चाहिए, तो क्या डालना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो मैंने लास्ट क्लास ही बोला था बेटा आपको कि एक्सटिंग्विशर्स बहुत अलग अलग होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर ऐसे बहुत अलग अलग ABC करके नाम होते हैं उनके। तो आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू यूज द रॉन्ग एक्सटिंग्विशर यू विल हैव द थिंग कैन बी फेटल। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से अगर आग लग गई हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर ही बेस्ट थिंग होता है उससे लड़ने के लिए, बता रहे हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. तो हम बहुत सारा millions of rupees जो है खर्च कर रहे हैं इस फायर को, जो आग लग जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए और फाइट करने के लिए, प्रिवेंटिंग फायर्स यानी आग लगने के लिए और नहीं लगने के लिए। और हमको नया नया कैसे हम लोग नए नए तरीके कैसे करें आग से बचने के लिए करके वी आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीस करके जानकारी मिल रही है हमको लेसन से। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it in good use in our everyday life. तो हमने सीख ली है, ऑन द होल पूरा मिला जुला के हमने सीख लिया है कि टू कंट्रोल फायर हमने मास्टर कर लिया है कि कंट्रोल फायर एंड पुट इन गुड यूज, कंट्रोल फायर और पुट इन गुड यूज, अच्छे यूज के लिए हम फायर को डालें करके हमने सीख ली है। लॉन्ग अगो देर वॉज नो फायरमैन, पहले के जमाने में फायरमैन नहीं रहते थे। तो क्या करते थे, वेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी वुड बिकम अ फायर फाइटर। अगर आग लग गई तो हर एक आदमी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो हर एक आदमी जो है फायर फाइटर बन गया था करके बता रहे हैं। All right, so we are going to the next paragraph. So in this paragraph, we learned that how we should not put out a fire when it's a fire caused by oil or electrical appliance. We should not put water. Then what should we do? We should use a carbon dioxide extinguisher. Okay, and we also learned in this paragraph that lot of money is being invested for preventing fires and to control the fire and make good use of it. And we also learned that fireman, before and all fire, there was no fireman, everybody whenever there was a fire became a firefighter. All right, so I hope this is clear now. Let's go to the next paragraph. Next paragraph, what does it say? The people formed human chains. तो कैसे फायर फाइटर बनते थे पहले जमाने में करके, तो उसके बारे में जानकारी दिया है कि पीपल जो है, पीपल व्हाट डिड दे डू, पीपल दे फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स की ह्यूमन चेन यानी कि एक ऐसे पकड़ लेते थे हाथ और क्या करते थे, पास ऑन करते थे, स्टिल डू इट, आज तक भी ऐसे होता है, अगर जरूरत पड़े तो दे स्टिल डू इट। आपने मूवी में सब देखा होगा कि आग लग जाती है गांव में, सब तो क्या करते हैं, एक दूसरे का पानी बकेट पास करते रहते हैं, फिर वो बकेट में से पानी डालते रहते हैं। ओके, तो क्या वही लिखा है, देखिए, पास्ट ऑन बकेट्स, क्या करते थे, पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर, बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल टू और अ पॉन्ड टू ब्लेज। तो एक पॉन्ड या वेल से, पास ऑन बकेट्स ऑफ वाटर कहाँ से, वेल्स या
पॉन्ड्स में से बकेट पानी भर भर के उस फायर को अब मिटाने के लिए, ब्लेज द फायर। ओके, नाउ देर आर लॉस अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensures that space is left between buildings to reduce the fire risk। तो अभी, नाउ नाउ यानी कि अभी जो है लॉस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लॉज यानी कि बेटा कानून। कानून होता है कि क्या कानून होता है कि आपको कि यहाँ पहले बिल्डिंग जो है, अभी मान लीजिए इधर एक बिल्डिंग है, तो इसके पास में और एक बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए, ये रॉन्ग है। आपको पहले अभी एक बिल्डिंग है तो इतना, वो कितना एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में इतना गैप होना चाहिए करके कानून है कि उससे उसको, और उसको मानना है उनको। अगर नहीं तो उनको कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं मिलेगा, अगर कर लिया तो वो डेमोलिश कर लेंगे। तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जब बनाते हैं, देयर शुड बी स्पेस लेफ्ट, एक स्पेस लेफ्ट। स्पेस लेफ्ट नहीं छोड़नी चाहिए जगह। ओके, ये बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग्स ऐसे, हाँ ये बिल्डिंग है तो ऐसे बनानी चाहिए, ऐसी नहीं बनानी चाहिए। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ऑल राइट, ठीक है, स्पेस बनानी चाहिए। देन बिटवीन द बिल्डिंग्स टू रेड्यूस, क्यों? अगर यहाँ पर आग लग गई, मान लीजिए यहाँ पर आग लग गई, ये बिल्डिंग में आग लग गई, तो ये ऐसे ही स्प्रेड हो जाएगा ना बेटा। यहाँ पर अगर यहाँ पर आग लगी है, तो अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए समय है ना हमको, तो यहाँ पे रोक सकते हैं। उसके अंदर इस बिल्डिंग से सब लोग को एवाक्यूएट भी कर सकते हैं। मगर ये जो है कंटिन्यूस है, तो ऐसे आग लग जाएगी, पूरा यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। जैसे हमने अभी देखा था ना वुड को, ऐसे मैंने लकड़ी रखा था तो एक हटा दिया, तो इसीलिए यहाँ पर उस पे सब छोड़ा जाता है। ऐसे सब रूल्स होते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के टाइम में। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू reduce the risk, reduce the fire risk। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो हर एक जो भी बनाते हैं, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ पब्लिक प्लेस यानी कि क्या बेटा, ये म्यूजियम, ये जैसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे सब जो पब्लिक प्लेस हैं, उनको हम इंश्योर, इंश्योर यानी कि जरूर, ये शुड मेक श्योर, दे शुड ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस यानी कि मानना है उनको। क्या मानना है? प्रिवेंशन ऑफ फायर का रूल्स जो है मान के चलना है। प्रिवेंशन नॉर्म्स, फायर का प्रिवेंशन नॉर्म्स उनको मान के चलना है। ओके, इज इट क्लियर? फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स जो है, दे शुड डेफिनेटली अबाइड बाय इट, दे शुड लिसन टू इट। समय है हमारे पास। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज ओनली टू मोर पैराग्राफ, वी विल कंक्लूड इट एंड देन वी विल फिनिश इट। ओके, so I hope this is clear. Now let's go to the next paragraph. Bands of firefighting workers with special equipment are known as fire brigaders. Okay, तो bands of firefighters होते हैं, bands of firefighting, fighting। ओके, उनके पास क्या है? ये जो बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग, उनके पास क्या है? स्पेशल इक्विपमेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पेशल इक्विपमेंट रहते हैं। ओके, वो क्या, उनको क्या बोलते हैं? हम फायर ब्रिगेडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेडर्स आर देयर टू पुट आउट फायर। ये सब, ये फायर ब्रिगेडर्स कौन है? फायर को पुट आउट करने में हमारी मदद करते हैं। पुट आउट, ओके, फायर को पुट आउट करने में हमारी मदद करते हैं। ओके, फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। और ये जो फायर फाइटर्स जो हैं, बहुत ही ट्रेन्ड पीपल होते हैं। ओके, ट्रेन्ड पीपल होते हैं। एंड देन दे पोसेस मेनी स्किल्स, और इनको जो है बहुत सारा स्किल्स रहते हैं, स्किल्स, बहुत चातुर रहते हैं, क्योंकि उनको आनी चाहिए कैसे कूदने का, किसी को बचाने का, ये सब उनको। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो उनको क्या, कैसे कैसे क्या स्किल्स होता है? एक तो कट आउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे बंद करने का, उसके बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसके बाद में नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, बहुत बड़े बड़े दीवारों को भी उनको गिराना पड़ता है। ओके, नॉक डाउन, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, डेंजरस वॉल्स।
स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। और ये जो स्प्रे वाटर है वो सब उनको करना पड़ता है ताकि जो है फायर को कंट्रोल में ला सके। तो यही स्किल्स उनको पोसेस करनी है करके। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड। तो उनको ट्रेन फर्स्ट एड में भी किया जाता है कि कोई जख्मी हो जाए, फायर में उनको जख्मी हो जाए तो उनको कैसे फर्स्ट एड देने का, कहाँ पे बांधने का, उनको कैसे ले जाने का, कौन सा इंजेक्शन देने का, या ऐसे बहुत सारी चीज जो है दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। बहुत धुआं आ जाता है ना, तो इफेक्ट्स ऑफ स्मोक से भी उनको कौन सा मेडिसिन देनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तो वो फर्स्ट एड भी उनको आना चाहिए। तो ये सारे इसमें वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं। ऑल राइट, तो अगला लास्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर and its uses helped early man to cope up with nature better and gradually adopt a settled mode of life। तो ये जो फायर का जो डिस्कवरी है मैन ने जो किया था, जो फायर का जो डिस्कवरी मैन ने किया था उसको अच्छा सा सेटल होने में उसको मदद किया था। सो अडॉप्ट किया एंड सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, यानी व्हाट हैपेंड, सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ फायर के वजह से मैन का अच्छा सा लाइफ सेटल हो गया। लाइफ इज फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, और फायर को क्या है, अभी तक वर्शिप करते हैं। ओके, स्टिल वर्शिप करते हैं, स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड एज वी नो, इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो फायर जो है फ्रेंड है, मगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो डेंजरस भी हो सकता है। So that's all. We are done with our lesson. Hmm? So that's all for the lesson. So very beautiful lesson where we got lot of information about how not what not to do and what to do, and how this with this triangle you can very well remember, so that you will know oxygen, heat and fuel. These are the three components needed to for the fire. If one is removed, you can stop the fire. So you remember this triangle for life. You will never go wrong with putting out the fire. All right, so that's all for today. Thank you so much for listening very patiently. Next class we'll have question answers and MCQ on these on this lesson. So I hope you all enjoyed the lesson and it is very informative. Thank you so much. Until then, bye bye. We'll see you next class. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।